Good morning, students. Today we are going to study the new lesson number 5, means of communication. Dear student, to convey our message to other is known as communication. The convey our messages to other is known as communication. We can communicate our messages either in written form or in spoken form. People in ancient times used they are used drums, light, smokes, and fire signal to send their messages. मैसेज भेजने के लिए एंशिएंट टाइम में लोगों ने इस प्रकार इस्तेमाल किया है ड्रम्स, लाइट, स्मोक एंड फायर सिग्नल टू सेंड देयर messages. But these means of communication were not effective because the message were not clear. It is not effective because the messages were not clear. With the development of writing, the means of communication changed. First, pigeons were trained to deliver to letter. The fast runner were asked to deliver to letter to far off places. After some time, person to persons on horse backs were used as messengers, but this means of communication were not so fast. They used to take days or months to deliver the messages. First, we are going to study the smoke signal and drum beats. Smoke signal and drum beats were used to signify victory of danger. जीत या खतरे का संकेत देने के लिए धुओं, संकेतों और ड्रम बीट का उपयोग किया गया. The sounds of drums could be heard far away. Similarly, smoke from a fire could be seen from a long distance away. दूर तक ड्रम की आवाज़ सुनी जा सकती थी. इस तरह आग से धुआं दूर से बहुत दूर से देखा जा सकता था. I already mentioned that but this means of communication were not effective because the messages were not clear. In ancient times they were used drums, light, smoke and fire signal, etc. Okay, after some time persons on horseback too were used as messengers. Second, messengers. Second, we are going to study messengers. Long messages were sent through messengers who travel on horseback or on foot. संदेशवाहकों के माध्यम से लंबे संदेश भेजे गए थे जो घोड़े या पैदल यात्रा करते थे. The messages were written on dried palm leaves or orally conveyed by the messengers. Dried palm leaves were also used to record events or write stories. ये संदेश सूखे ताड़ या पत्तों पर लिखे गए थे या दूतों द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किया गए थे. सूखे ताड़ के पत्तों का उपयोग घटनाओं को रिकॉर्ड करने या कहानियों को लिखने के लिए भी किया जाता था. अष्टम पढ़ेंगे pigeon post. The trained pigeons were used to send short messages, especially during wars. The messages were written on pieces of cloths. Palm leaves, parchments of papers, this were then tied to the legs of the
pigeons. प्रत्येक ट्रेनिंग मिला कबूतरों को छोटे संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था, खासकर युद्धों के दौरान। संदेश कपड़े, तांड के पत्तों, युद्धों, चर्मपत्र या कागज पर लिखे गए थे। दिस वेयर देन टाइड टू लेग्स ऑफ द pigeons. ये कबूतरों को पैरों से बंधे थे, बांध किया गया था. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी जर्नी ऑफ लेटर. After learning about the early means of communication used in the ancient times, Chambak decided to write a letter to invite his friend John to his birthday party. Chambak lives in Delhi and John lives in Gurgaon. प्राचीन काल में उपयोग किया जाने वाला संचार के शुरुआती साधनों के बारे में जानने के बाद चंबक ने अपने दोस्त जॉन को अपने बर्थडे पार्टी में शामिल करने के लिए एक पत्र लिखने को फैसला किया. Then चंबक lives in Delhi and John lives in Gurgaon. जॉन ने चंबक ने जॉन को एक लेटर लिखा. ये लेटर इस प्रकार है: यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी ऑन द 1st of January. माई पेरेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग ए फन पार्टी एट होम. आपको 1 जनवरी को मेरे बर्थडे की पार्टी में आमंत्रित किया गया है. माई पेरेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग ए फन पार्टी एट होम. मेरे माता पिता घर पर एक मज़ेदार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं. माई मदर विल बी bake a cake and there will be buffets and lemonade. I will be very happy if you come to the party. मेरी माम एक केक बेक करेगी और उसमें बफेट्स एंड नींबू पानी होगा. अगर आप पार्टी में आए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी. बेस्ट विशेस मतलब शुभकामनाएं. ओके, चंबक ने जॉन को लेटर इस प्रकार लिखा. आफ्टर राइटिंग द लेटर चंबक शो टू हिज मदर. लेटर लिखने के बाद चंबक मम्मी को दिखाया. ही शो टू हिज मदर द लेटर. तुरंत उन्होंने उसको मम्मी को पूछा, मदर कुड यू हेल्प मी सेंड दिस लेटर टू जॉन. माम, क्या आप मुझे जॉन को एक पत्र भेजने में मदद कर सकती है? मम्मी ने कहा, ऑफ कोर्स आई विल लेट अस गो टू द पोस्ट ऑफिस. मैं बिल्कुल आपका साथ पोस्ट ऑफिस में जाने दूंगा. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. आई विल लेट्स गो टू द पोस्ट ऑफिस. हम चले पोस्ट ऑफिस में. मैं आपको ये लेटर भेजने के लिए मदद करती. At the post office, Champak and his mother to buy stamp and envelope from the counter. पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद में एनवेलप, आपको देखा हुआ है एनवेलप, इसमें ये एनवेलप कवर में उसका ऊपर स्टाम्प लगाया, मोहर लगाया. उसके बाद में कवर का ऊपर लिखा है टू, कहाँ भेजना है, उसको दोस्त को भेजना है. जॉन टी 4th नेस्ट अपार्टमेंट सुशांत लॉक गुड़गांव मतलब गुड़गांव. पिन कोड 12220001. इस प्रकार लिखे ये लेटर इस कवर के अंदर डाला. ओके, चंबक पुट द लेटर इनसाइड द एनवेलप. ये लेटर ये कवर के अंदर डाला. हिज मदर आस्क्ड हिम टू स्टिक स्टैम्प ऑन द एनवेलप एंड राइट जॉन एड्रेस एंड पिन.
लेटर अंदर डाल के उसका कवर के ऊपर ऐसे लिखने के लिए नाम वगैरह सारे एड्रेस वगैरह लिखने के लिए चंपक को मम्मी ने कहा। उसके बाद चंपक ने मम्मी को पूछा, मदर व्हाट इज पिन? पिन क्या है? ये पिन का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड मीन बाय पिन? पिन का मतलब क्या है? जब मम्मी ने कहा पिन और पोस्टल इंडेक्स नंबर, what is the full form of PIN? P means postal, I means index, N for number, postal index number is a unique 6-digit number used to post office numbering system allocated to an area in a particular city to ensure that letter reach the correct post office there. पिन एक आधारित 6 डिजिटल नंबर है जिसका उपयोग ऐसा होती है, जिसका उपयोग पोस्ट ऑफिस नंबरिंग सिस्टम में किया जाता है एक सुनिश्चित और निश्चित करने के लिए एक विशेष शहर में और सिटी में क्षेत्र को आवधित किया जाता है। है पत्र वहाँ सही पोस्ट ऑफिस तक पहुँचते हैं। इस रूप से मम्मी चंपक ने कहा पिन कोड के बारे में। After that the drops of letters in the post box. Let us now learn letters reach the destination. ये लेटर किस प्रकार कैसे ले जाता है, इसका डेस्टिनेशन के बारे में, इसका दूर के बारे में ज़्यादा इनको समझाया इसका मम्मी। ओके, the letter are collected from the post box or by a postman and taken from to the post office. ये पत्रों को एक टाकिया द्वारा पोस्ट बॉक्स से एकत्र किया जाता है, कलेक्टेड। ओके, द लेटर आर कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स बाय पोस्टमैन। किसको पोस्ट बॉक्स में कौन कलेक्ट करता है? पोस्टमैन। टाकिया आके पोस्ट बॉक्स से एकत्र किया जाता है, कलेक्ट कर किया जाता है। At the post office, each letter is stamped and stored according to the destination. और पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में सारा पत्र पर मुहर स्टाम्प लगाई जाती है और अपने लक्ष्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस इज लेटर स्टाम्प्ड ऑन द स्टोर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स स्थान, लक्ष्य, दूर। ओके, द लेटर्स आर सेंड बाय एयर, रोड, rail depending to the distance between the destination and to the original. okay, पत्रों का स्थान और लक्ष्य मूल के बीच की दूरी के आधार पर हवाई और सड़क या रेल द्वारा भेजा जाता है। At the destination, the letters are sorted again according to the address and pin written on them. The postman deliver the letter to the correct addresses. ये लक्ष्य पर उनके द्वारा लिखे गए पते और पिन के अनुसार पत्रों को फिर से क्रमबद्ध किया जाता है। टाकिया तब पत्रों को सही पते पर भेजता है। Dear student, nowadays a developed network post system present that throughout the world. Letters are written on postcards, inland letter, stamped envelopes, or in aerogram are posted. Our addresses with the pin code mentioned on the letter. सारा लेटर में अपन क्या पिन कोड मेंशन करना अनिवार्य है। द पोस्टल डिपार्टमेंट हेल्प डिलीवर टू लेटर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, ओके, थ्रू द ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स etc. These are given in the post office where they are grouped city wise, area wise, etc. and delivered to us by postman. postman हर जगह में
ये पिन कोड एड्रेस लेके कई सिटी और शहर में पहुंच जाती है। Dear students, postman deliver our letters, parcel, etc. पोस्टमैन चिट्ठी वगैरह घर पे लेके आती है, parcel etc. to the destination that they are supposed to the delivered. You know, one point is there. A postman is the backbone of our postal department. Postal department का backbone कौन होती है? Postman. A postman is the backbone of our postal department. After the word drop our letters in the letter box. अपन बॉक्स में जो डालता है वो सब सारा लेटर वगैरह निकाल के टाइम पर ये पिन कोड और एड्रेस दे के कई जगह में टाइम पर ले जाती है, सबको देती है। दिस लेटर आर शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द एड्रेसेस रिटन ऑन दम, देन द लेटर्स आर सेंड टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस बाय बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। कई जगह में जाने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए अपन इस व्हीकल को डिपेंड करता है, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा। The postman of that area deliver the letters at the addresses written on them. He also brings our parcels, money order and other such postal material also. Okay, सारा पार्सल, मनी ऑर्डर वगैरह ये अपना घर पे कौन लेके आता है? पोस्टमैन. Postman is the backbone of our postal department. Okay. A postman is very punctual. कौन है very punctual? The postman is very punctual. टाइम पर आती है, गर्मी हो और बारिश हो, टाइम पर क्या है ये लोग काम करते रहते हैं। The postman is very punctual. He does his duty under all circumstances and in any weather. So the postman is known as backbone of our postal department. Okay, the postman is an important community helper as they brings people close by delivering their messages, letter, parcel etc. to the required destinations. Okay, dear students, your first video is completed. Thank you.